وہ لیڈر جسے آپ نے 600 سے زائد دنوں سے جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، وہ اس ملک کے سیاسی استحکام، معاشی استحکام کی ضمانت ہے۔ جب ایوان صدر کے اوپر یہ سارا پروسیس ہو رہا تھا، نہروں کی بات کی جا رہی تھی، تو اس وقت کیوں سائن کیے گئے اور اس وقت پیپلز پارٹی کیوں خاموش ہوئی؟ کیونکہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے یہی محافظ آج سندھ کے سوداگر بنے ہوئے ہیں۔ آپ کی کسی بات پر عوام، پاکستانی قوم، سندھی عوام اعتماد نہیں کرتی۔ ہم آپ کا تشدد بھی برداشت کر رہے ہیں، آپ کے ظلم کو بھی برداشت کر رہے ہیں، لیکن ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں کیونکہ ہماری جنگ نظریے کی جنگ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے کیسز کا فیصلہ جلد از جلد کیا جائے۔ آپ کو چاہے ڈیلی بیسس پر ایک کیس کو سننا پڑے، چاہے 24 گھنٹے آپ کو ایک کیس کو سننا پڑے، آپ اس کیس کو سنیں، اس لیے کہ وہ لیڈر جسے آپ نے 600 سے زائد دنوں سے جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، وہ اس ملک کے سیاسی استحکام، معاشی استحکام کی ضمانت ہے۔ آج میں میڈیا کے توسط سے بہت سی باتیں کرنا چاہوں۔ سب سے پہلے میں یہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب کا، کیونکہ ابھی صبح میں جیل ٹرائل سے ہو کر آئی ہوں، ان کا پیغام پہنچانا چاہوں گی۔ انہوں نے پوری پاکستانی قوم کو اپنا سلام بھیجا ہے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان حالات میں بھی، جب کل ان کو ہتھکڑیاں لگا کر، جو ایک فارمر وزیر خارجہ ہے، جو پاکستان کو دنیا میں ریپریزنٹ کرتے تھے، ہتھکڑیاں لگا کر دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا، سندھ سے آئے ہوئے ان کے ورکرز کو ان سے نہیں ملنے دیا گیا، اس کے باوجود بھی ان کے حوصلے بلند ہیں اور وہ ڈٹ کے وزیر اعظم خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا پیغام عمر کوٹ کے لوگوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ عمر کوٹ میں بائی الیکشن ہونے لگا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف JUI کا مشترکہ کینڈیڈیٹ لال مالی صاحب ہیں، جن کا انتخابی نشان مور کا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب، جو ہمارے وائس چیئرمین صاحب بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ سندھ کے عوام کو نہری پانی کی تقسیم کو روکنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینا ہوگا۔ اس دن مہر کے نشان کے اوپر ووٹ ڈال کر اپنے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کو روکنا ہوگا۔ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ جواب دیا جائے، جب ایوان صدر کے اوپر یہ سارا پروسیس ہو رہا تھا، نہروں کی بات کی جا رہی تھی، تو اس وقت کیوں سائن کیے گئے اور اس وقت پیپلز پارٹی کیوں خاموش ہوئی؟ کیونکہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے یہی محافظ آج سندھ کے سوداگر بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا، کیا یہ بلاول زرداری اور پیپلز پارٹی کے نوٹس میں نہیں تھا کہ نہری نظام کا اختتام عمر کوٹ پر ہوتا ہے، اور ارسا کی رپورٹ پر انہوں نے کیوں ہاں کی، کیوں ایوان صدر کے اندر فیصلے ہونے دیے، اور آج جب انہوں نے وہاں پر اس کے اوپر سارے حالات دیکھے ہیں تو اپنی ہی بات سے پیچھے ہو رہے ہیں۔ اور ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ آپ اگر اس طرح کا کام کریں گے تو سندھ کی عوام تو آپ کے ساتھ چھوڑ چکی ہے، وہ تو پہلے بھی چھوڑ چکی تھی، کیونکہ آپ تو فارم 47 پر آنے والے ہیں۔ اس لیے عوام کو یہ نورا کشتی مت دکھائیں۔ آپ کی کسی بات پر عوام، پاکستانی قوم، سندھی عوام اعتماد نہیں کرتی۔ تو میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جتنے لیڈران اس وقت جیل کے اندر ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، عمر چیمہ صاحب ہوں، محمود الرشید صاحب ہوں یا اعجاز چودھری صاحب ہوں، سخت حالات کے باوجود بھی وزیر اعظم خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب آتے ہیں باقی باتوں کی طرف۔ سوال ہوگا، ملک میں کیے گئے ہر ظلم پر سوال ہوگا، کسانوں کے ساتھ گندم پر کیے گئے ہر ناانصافی پر سوال ہوگا، صنعتوں کے معاشی قتل پر بھی حساب ہوگا۔ تحریک انصاف اپنی نہیں، کسانوں کی، یہ جو باہر بیٹھے ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے جو کئی دنوں سے دھرنا دیے بیٹھا ہے، ان سب کی جنگ لڑ رہی ہے۔
हमारे रिप्रेजेंटेटिव विदाउट एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन के, जो हमारे लेबर यूनियन के सदर भी हैं और मेरे फोकल पर्सन भी हैं, आपके साथ दिन रात आपके धरने में एज ए इजहार यकजहती मौजूद रहे हैं। किसानों के साथ भी हम इजहार यकजहती का ऐलान करते हैं। पीटीआई पंजाब हर पिसे हुए तबके के साथ खड़ी है। पीटीआई सिर्फ जिन लोगों पर जुल्म हो रहा है उनके साथ खड़ी है, चाहे वो बलोचिस्तान में हो रहा हो, चाहे वो सिंध में हो रहा हो, या चाहे पंजाब में, क्योंकि हम तो हर जगह ही मजलूम हैं। और मैं इस डरी हुई बुज़दिल हुकूमत को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, 10 अप्रैल की रात को अपने वजीर आजम से इजहार यकजहती के लिए अवाम निकली थी। आज मुल्क भर में और इंशाअल्लाह ताला बिलखसूस पंजाब में पुरअमन तौर पर खान साहब के साथ इजहार यकजहती के लिए इस रेजीम चेंज के खिलाफ रैलीज निकाली जाएंगी। हर टिकट होल्डर को ये कहा गया है कि उसने अपने हलके में ये रैलीज निकालनी है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे 23 मार्च और 8 फरवरी को हुआ था। बाकी हम आपका तशद्दुद भी बर्दाश्त कर रहे हैं, आपके जुल्म को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हम डट कर खड़े हैं, क्योंकि हमारी जंग नजरिए की जंग है। हमारी जंग इस हक की जंग है कि हमने अदलिया को भी बचाना है, हमने पाकिस्तान को भी बचाना है, हमने सहाफ़ियों के हक की जंग भी लड़नी है, हमने किसानों, ताजिरों, हर तबके की जंग लड़ी। तो खुदारा पाकिस्तान को आग में झोंकने की बजाय वजीर आजम इमरान खान के केसेस का फैसला जल्द अज जल्द किया जाए। और अदलिया को मैं यह बताना चाहती हूँ, आज आपके कहने के ऊपर हम इसलिए कमरा अदालत छोड़कर आए थे कि हम कोई बहाना नहीं देना चाहते थे कि आप वजीर आजम इमरान खान के केस में मजीद इल्तवा करें। मैडम ये बता दीजिए कि अभी मैं बात खत्म करें कि जी मुझे तो ये समझ नहीं आती कि पीटीआई मार खा रही है, बाहर से तो मार खा रही है, आप क्यों बार बार धड़ा बनती है। भाई हमारा सबका मकसद एक है, जब रैली अनाउंस होती है सब निकलते हैं। जब आप आज देखिए आपके इलेक्टेड एमपीए खान साहब के साइल बनकर आज इस अदालत में मौजूद हैं। मुझे ये समझ नहीं आती है कि पीटीआई की इस बात को हाईलाइट नहीं किया जाता कि जी चीफ ऑर्गेनाइजर पे तशद्दुद हुए, मियां अजहर साहब को 84 साल की उम्र में पुरअमन तौर के ऊपर उनके सर के ऊपर पत्थर मारा गया। ये किसी ने नहीं कहा कि साहबजादा हामिद के साथ आपने क्या किए, ये किसी ने नहीं कहा कि अलीमा आपा, नौरीन आपा और डॉक्टर उस्मा को आपने अंधेरे में बरसती बारिश में कीचड़ में उतार दिया। ये किसी ने नहीं कहा कि हमारे दुपट्टे हमारे सरों से खींचे गए हैं, हमारे ऊपर जुल्म और तशद्दुद हुआ है। मैंने तो सबको ओपन चैलेंज किया कि मेरे लॉयर वहाँ एप्लीकेशन जमा करा रहे हैं, मैं सरकारी अस्पताल में अपना मेडिकल करवा रही हूँ। तो आप मुझे ये बताएं, पहले इसके ऊपर तो करें। पीटीआई नाम है एक लीडर का, वजीर आजम इमरान खान और कारकुनों का, उसके बाद मैं भी एग्जिस्ट नहीं करती, कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। सड़कें तो गर्म हो चुकी हैं, उस दिन आपने हालात नहीं देखे जब आपको पूरी रावलपिंडी की पुलिस अडियाला पर लगानी पड़ जाए। जब आज मतलब मुझे तो ये हैरत होती है कि मेरे टिकट तो चलते नहीं हैं, जिनके इन्होंने चलाने होते हैं, जिनकी रैलियों की अनाउंसमेंट्स करनी होती है, वो तो धड़ाधड़ चलना शुरू हो जाती है। उनको तो आप लोग हेडलाइन में भी ले लेते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मैं जो फैसला करूँगी, जो अहकामात जारी करूंगी, मैं खुद आप लोगों से शेयर करती हूँ। उस दिन भी जिन लोगों ने मुझसे पूछा था, मैंने आपको यही बताया था, 8 अप्रैल को हम इजहार यकजहती करने जाएंगे। हम इजहार यकजहती करने जा रहे थे, बाकी तमाशा हुकूमत ने खुद खड़ा कर दिया। आज भी हमने कहा है अपने वक्त के ऊपर, अपने मुताबिक, अपने इलाके का फैसला करके हम रैली निकालेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि इनको हम चाहते हैं ये बिजी रहें, हम धूप खा रहे हैं, हम धक्के खा रहे हैं, तो थोड़े से ये भी धक्के खाए ना, लेकिन तवज्जो इनकी आवाम की तरफ होनी चाहिए, पीटीआई की तरफ नहीं। ये बताइएगा कि दानी और आजी पॉलिसियों के तहत हुकूमत को तो समझ आती है कि वो फलस्तीन पर बात नहीं करते, आप लोग क्यों नहीं फलस्तीन पर बात कर रहे? फलस्तीन में आज भी ढेरों बच्चे जो हैं वो सब का शिकार हो गए। देखिए मेरे ख्याल में कि फलस्तीन और कश्मीर के ऊपर पीटीआई का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़िया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा कश्मीर और फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ा है। वो इनकी तरह के लीडर नहीं हैं जो ये कहते हो वो उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं। तो मेरे ख्याल में
जो हमारे लीडर का स्टैंड है पूरी पार्टी उसके पीछे खड़ी होती है। अब ये तो सवाल आपको अहले इक़्तिदार से करना चाहिए और अरबाब इख्तियार से करना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में फ़लस्तीन और कश्मीर वाला हाल तो इन्होंने खुद कर दिया है। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इन्होंने खुद पामाल कर दिया है। कश्मीर में हम सुनते थे ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई, कश्मीर में हम सुनते थे जुमा नहीं पढ़ने दिया गया, कश्मीर में हम सुनते थे रमज़ान में अफ्तार नहीं करने दिया गया, कश्मीर में हम सुनते थे कि किसी के जनाजे नहीं पढ़ने दिए गए। आज तो सारा कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है। यहाँ पर बेसिकली हम हंसते मुस्कुराते जुल्म बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद भी हम तो सिर्फ इतना कहते पाकिस्तान की फिक्र करें, पीटीआई की फिक्र छोड़ दें। पीटीआई एक वो हकीकत है जो आप जितना मर्जी कर लेना, मतलब वो कहते थे ना, रात को ये रोज खत्म करके सोते हैं, सुबह फिर एक नई रैली हो रही होती है, सुबह फिर एक नया एहतजाज हो रहा होता है, पूरी पुलिस इन्होंने माल पर लगाई है, एहतजाज कहीं का कहीं हो चुका होगा। ये फिक्र करें अपनी। ये मुझे बता, मैं तो खड़ी हूँ। मैडम ये बता दीजिए, आजम स्वाति साहब ने कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि उनको इक़्तिदार पावरफुल लोग हैं उनसे बात करें, ताकि क्या आजम स्वाति साहब की बात ठीक है या उन्होंने कुछ गलत बयानी की है? क्योंकि उसका डिनाई किया जा रहा है कि इमरान खान डील नहीं चाहते, तो स्वाति साहब की ये बात गलत है या जो डील चाहते हैं ना वो खतों में लिख कर देते हैं, मुझे मच्छर बड़े काटते हैं, मुझे जल्दी जल्दी अटक भिजवा दो। जो डील करना चाहते हैं ना वो कतरी खत मंगाते हैं और कहते हैं मैं 10 साल हुकूमत के अंदर रहूंगा, हुकूमत से बाहर मैं पाकिस्तान वापस नहीं आऊंगा। जिन्होंने खतूत भी लिखे हैं कि जी मुल्क का सोचें, वो बंदा 600 से ज्यादा दिनों से जेल में बैठा है, बहनों से नहीं मिलने दे रहे, ईद पे नहीं मिलने दे रहे, खाना नहीं पहुंचने दे रहे, सहूलत उसको कोई नहीं है। यहाँ पर मुझे समझ नहीं आती है, हमें धक्के मार रहे हैं, हमारे ऊपर FIR हो रही है, नाम लेकर हमले हो रहे हैं, रात से कारकुनों के ऊपर रेड हो रहा है, फिर भी लोगों को ये लगता है कि यहाँ डील हो रही है। देखिए जी, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ और जो मैं ये बताना चाहती हूँ, मैंने अपने लीडर को देखा है, मेरी ट्रेनिंग मेरे लीडर ने की है, वो खड़ा रहेगा अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, और बिल्कुल ऐसे हम भी खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया।